Hello students, today I will discuss chapter 7 Ratio and Proportion. Chapter 7 Ratio and Proportion. Right? First of all, I want to discuss introduction. First, what is the ratio? Ratio means a ratio is a comparison of measures of two or more quantities of the same kind by division, right? For example, the ratio of of 9 rupees to 16 rupees. You can denote this ratio 9:16 or 9/60, right? Second example, the ratio of 150 centimeter to 100 centimeter. You can write this 150 ratio 100. 0 and 0 cancel. 5 3 is 15. 5 2 is 10. Third, the ratio of 8 marbles to 12 marbles. 8 ratio 12. 4 2 is 12. 4 2 is 8. 4 3 is 12. 2 ratio 3 is the right answer. And you can represent this ratio 2/3. Similarly, this ratio you can represent 3/2, right? Next example, simplify the following ratio. First, 2 and 2/3. Ratio 1 and 1/15. First of all, you have to change the mixed fraction into the simple fraction. 3 2 is 6 and 2 8/3.
15 1 is 15 and 1 16 upon 15. Now you have to take the LCM, or you can represent this just like this: 8 upon 3 divide 16 upon 15. You can represent 8 multiply 15. Multiplication of external term, multiplication of middle term. 3 into 16. 8 1 is 8, 8 2 is 16. 3 1 is 3, 3 5 is 15. 5 upon 2, and you can represent this 5 raised to 2, right? This is the first method. Secondly, और सेकंड मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा, तो 8 अपॉन 3, और एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 3 and 15 is 15, राइट? 15 से मल्टीप्लाई करें, 16 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, 3 5 जा 15 1 जा 8 5 जा 40 अपॉन रेशो 16, 8 2 जा 16, 8 5, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 upon 2. This is the first method, this is second method. First method, second method, right? Next example, example second, 1 upon 3 ratio 1 upon 6 ratio 1 upon 8. You have to take the LCM. 3 6 8. LCM 2 3 जा 2 4 जा 3 3 2, 3 3 1, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, and you have to write here multiplied by 24, 1 upon 6 multiplied by 24, 1 upon 8 multiplied by 24, 3 8 जा 6 4 जा 8 3 जा. Answer is 8 ratio 4 ratio 3, right? This is your answer. Next question, example third. If A ratio B equal to 5 ratio 6 and B ratio C equal to 8 ratio 9, find A रेशो B रेशो C. सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. A रेशो B 5 रेशो 6, A अपॉन B लिखा 5 अपॉन 6, B रेशो C 8 रेशो 9. A और B और C कॉमन पोर्शन क्या है? B है. B यहाँ पर भी आ रहा. इट मीन्स आपको कैसे लिखना है? ये 5 रेशो 6 जो कॉमन है, B कॉमन है, B की वैल्यू यहाँ 6 है, B की वैल्यू यहाँ 8, तो ये जस्ट इसके नीचे लिखा जाएगा 8 रेशो 9. अब आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए. 5 8 जा 40, 8 6 जा 48, 6 9 जा 54. ये आपका A, ये B और ये C. अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करें. 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 20, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 24,
2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 7। अभी ये किसी से कैंसिल नहीं हुआ। कैंसिल होना है तो सभी से कैंसिल होना चाहिए, यानी कि एक ही किसी नंबर से। जैसे 2 से कैंसिल किया हमने तो 2 से तीनों पार्ट कैंसिल हो रहे हैं। 3 से कर रहे हैं तो 3 से तीनों पार्ट हो रहे हैं। इधर देखिए 2 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। 3 से आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। इसलिए आपका राइट आंसर यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। इफ 3a इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c, then find a ratio b ratio c. Let solution 3a equal to 5b equal to 6c equal to k. पहले ये वाला और ये वाला रिलेशन लें। 3a इक्वल टू k, a इक्वल टू k अपॉन 3। सिमिलरली 5b इक्वल टू k, 5b इक्वल टू k, b इक्वल टू k अपॉन 5। सिमिलरली 6c इक्वल टू k, c इक्वल टू k अपॉन 6। Write here a ratio b ratio c. A means k upon 3, b means k upon 5, c means k upon 6। k k k सभी में कैंसिल हो जाएगा। 1 1 1, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 6। LCM of 3 5 6, 3 5 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 3 5 3, 3 1 जा 5 1 जा 5 1 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 का मल्टीप्लाई करो। 30 1 अपॉन 5 multiplied by 30, 1 upon 6 multiplied by 30, 3 tens are 5 6 are 6 5 are. Answer is 10 ratio 6 ratio 5, 10 ratio 6 ratio 5, A B C. This is your right answer, right? Next question, example 5. Check whether the numbers 1.5, 2.5, 3.6, 6.0 are in proportion. Whenever 4 numbers in the proportion, now you can use this formula. Product of extremes equal to product of middle term. Product of extremes, it means product of
एक्सटर्नल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो देखिए 1.5, 2.5, 3.6, 6.0 एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सटर्नल टर्म। ये 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.0 प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म दिस एंड दिस 2.5 multiplied by 3.6 15 6 90 15 6 90 एक 0 1 2 1 2 यहाँ है 25 6 150 कैरी 15 25 3 75 and 50 90 it means 9 equal to 9 these numbers are in proportion, right? Next question, example 6. Example 6, find the value of x. Find the value of x. 1/6 ratio x equal to 1/2 रेशो 1/5। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, ये ऐसे भी हो सकता है a रेशो b प्रोपोर्शनल c रेशो d। ये ऐसे भी होता है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। इट मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a/b इक्वल टू c/d। a मल्टीप्लाइड बाई d इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई c। जैसा मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म। सेम फॉर्मूला इसमें भी लगाना, यहाँ प्रोपोर्शन हो, इक्वल हो, सेम मतलब है। 1/6 मल्टीप्लाई 1/5 दिस एंड दिस इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म this multiplied by this 1/30 x upon 2 30x equal to 2 x equal to 2/30 2 1 2 1 2 x equal to 1/15। this is your final answer, right? Next question 6, find the fourth proportion. Find the fourth proportion. Proportional 1.5, 2.5, 4.5 लेट बी फोर्थ प्रोपोर्शनल x है। तो फॉर्मूला वही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई x 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 x इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 4.5 अपॉन 1.5 पॉइंट एंड पॉइंट ये कैंसिल, x इक्वल टू इसका पॉइंट हटा है 25/10 ये 45 और अपॉन नीचे क्या 15 15 1 15 3 5 5 5 2 x equal to 15/2 it means 7.5, right?
Next question 7. Find ये 6 एग्जाम्पल 6, 7, 8. Find the third proportion. Find the third proportion. फोर 12. थर्ड प्रोपोर्शन मान लीजिए x है, a रेशो b रेशो c, ये प्रोपोर्शनल है मान लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c. इट मीन्स b इंटू b इक्वल टू a इंटू c. इट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू ए सी. ऐसे आपको ये लिखना 4 अपॉन 12, 12 अपॉन x, 4x इक्वल टू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, 4 3 जा 12, x इक्वल टू 36. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 9. In a computer lab, there are 5 computers for every 8 students. How many computers will be needed for 40 students? राइट. क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए. इन ए कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब के अंदर देयर आर 5 कंप्यूटर्स, 5 कंप्यूटर हैं फॉर एवरी 8 स्टूडेंट, यानी 8 स्टूडेंट के लिए 5 कंप्यूटर हैं. आपको बताना हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 40 स्टूडेंट. 40 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर की नीड होगी. तो आप क्या करें, एक टेबल से भी कर सकते हो इसको ऐसे. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write here computer students. फाइव कंप्यूटर 8 स्टूडेंट के लिए हैं, तो 40 स्टूडेंट हैं कंप्यूटर मान लीजिए एक्स, तो आपको 5 अपॉन 8 इक्वल टू एक्स अपॉन 40. क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई एक्स, 5 मल्टीप्लाई 40, एक्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 40, 8 5 जा, एक्स इक्वल टू 25 computers needed. Right? This is your final answer. Now next question, the ratio between
between male and female teachers in a school is 5:8. If there are 56 female teachers in the school, find first the number of male teachers, second total number of teachers, total number of teachers. Solution. First of all, you have to read the question carefully. The ratio between male and female teachers in a school is 5:8. किसी स्कूल में मेल टीचर और फीमेल टीचर का रेशो क्या है? 5:8 है. इफ़ देयर आर 56 फीमेल टीचर्स, यदि स्कूल में 56 फीमेल टीचर हैं तो आपको बताना मेल टीचर कितने और टोटल टीचर्स यानी फीमेल और मेल टीचर मिला करके. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हियर मेल टीचर, हियर इज फीमेल टीचर, 5:8. एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फीमेल टीचर 56 और फीमेल यहाँ कितने 8x, तो 8x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56/8, 8 7 जा, x इक्वल टू 7. और मेल टीचर कितने होंगे? 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 7, 35. टोटल टीचर्स 35 ये हैं, फीमेल 56, 91 टीचर्स. राइट. थैंक यू.